If you're planning to visit Bali from India and don't want to waste your money or panic at the airport, watch this video till the end. Namaste viewers, welcome to Momo Sapien Vlogs. I am Priyanka. And I am Asu. And recently we traveled to Bali. In this video, I am going to be sharing a list of all the things you need to know before planning your visit to Bali. Right from the visa, arrival card, airport process, and also some common mistakes जो Indians कर देते हैं. Let's begin. First, we come to the visa part. So Bali offers visa on arrival for Indians, which means कि आपको बहुत ज्यादा पहले एडवांस में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. बाली का जो वीजा का कॉस्ट आता है वो 5 लाख IDR आता है, जो इंडियन रुपीज में अगर कन्वर्ट करते हैं 2700 अप्रोक्स होता है. वैसे आपके पास 2 ऑप्शन है वीजा लेने के लिए. एक तो ई वीजा आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और एक ऑन अराइवल है. बट अगर आपको बहुत ज्यादा एयरपोर्ट पे टाइम वेस्ट नहीं करना है लंबी लंबी क्यूज में, तो इट्स बेटर टू अप्लाई ऑनलाइन वाया इंडोनेशियाज ऑफिशियल वेबसाइट विच इज गिवन. और वीजा बहुत जल्दी विद इन मिनट्स इशू हो जाता है, which makes the process much easier. The next part is the arrival card, and most people get confused here because arrival card is mandatory even if you have a valid visa. आपको जो अराइवल कार्ड है आप बिफोर लैंडिंग आप उसको फिल कर लीजिए, नहीं तो एयरपोर्ट में आपको टाइम लग जाएगा. हाँ, क्योंकि एयरपोर्ट पे भी वैसे तो जगह जगह QRs दिए हुए हैं, पर बात वही है कि वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में उनकी वेबसाइट पे इट विल बी अ बिट ऑफ अ हैसल. सो इट्स बेटर कि आप घर पे ही पहले उसे एडवांस में फिल कर लें, ज्यादा टाइम लगता नहीं है. और सो आई विल जस्ट क्विकली शो यू हाउ एग्जैक्टली हमने अपना अराइवल कार्ड फिल किया. So your first step is to log on to the official website of Indonesia as given on the screen. Next, scroll down, click on Foreign Visitor. After this, आपकी पर्सनल डिटेल्स का एक पेज खुल जाएगा जहां पे आपको लीड ट्रैवलर की इंफॉर्मेशन डालनी है. सो फर्स्ट सेलेक्ट योर कंट्री एंड इंडिया. एंटर योर फुल नेम. यहां पर आएगा आपका डेट ऑफ बर्थ. नेक्स्ट कॉलम इज योर कंट्री. देन कम्स योर जेंडर एंड पासपोर्ट नंबर फिल कीजिए एंड डेट ऑफ एक्सपायरी. Fill in your mobile number and your email address. Make sure आपका email address correct रहे, क्योंकि arrival card का QR आपके email पे ही भेजा जाएगा. The next step is to click on Add Traveler. आपके साथ जितने लोग कंपनी कर रहे हैं आप उतनी बार Add Traveler करके सबकी डिटेल्स फिल कर सकते हैं. After clicking next, you'll be taken on the travel details page, जहाँ पे आपको individually visa details verify करनी होंगी. One by one आप visa details fill कीजिए. उसमें अपना इंडोनेशिया में date of arrival डालिए, date of departure डालिए और अपना visa number डाल दीजिए. It will eventually verify and display your visa details. अगर आपके visa details correct हैं, then you go and click on yes it is, click on next and proceed to the page of transportation. Under the mode of transport, you select air, and for the purpose, you can select holiday, sightseeing or leisure. Then select your arrival airport. Type of air transport will be commercial flight. Enter your flight name and your flight number. Select the residence type as hotel and enter your hotel name. It will automatically take the details of the immigration office. Clicking on next will take you to the declarations page, wherein you'll have to fill in the declaration form for each traveler. You start by filling in your health declaration. For the option of the countries of origin and departure, if you have a connecting flight, you will be required to fill in all those countries. Now I had a connecting flight via Malaysia, so I put India and Malaysia as well. Select no for the quarantine declaration and make sure you do not carry any of those items. Next, you will be required to fill in the customs declaration form. Enter the number of baggage arriving with you. Study the items which need to be declared to the customs. If you are carrying any of those goods, then select the yes option and list all those items. If you don't have any of these items, select no. In the next option, select yes. However, if you are staying in Indonesia under a period of 90 days, you will not be required to give your IMEI details. But if you are planning to stay over 90 days, IMEI details will be asked. So that is it. Check the tick box. Click submit, verify the CAPTCHA, and your arrival QR code will be generated. It will also be sent to you on your email ID. तो देखा, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे. एंड लेकिन अगर आपने ये स्टेप स्किप कर दिया तो एयरपोर्ट एग्जिट आपका 1 से 2 घंटे पक्का डिले हो जाएगा. सो ट्रस्ट अस, डू दिस बिफोर लैंडिंग. So there's one more thing which goes by the name of Love Bali fees, or it is roughly 800 rupees per person INR.
लेकिन हम जब गए तो किसी ने चेक नहीं किया। इनिशियली हमने जो जितना भी रिसर्च किया था जाने से पहले, इट वाज ब्रॉट टू आवर नोटिस कि इट अपेरेंटली वाज कंपल्सरी बिफोर एंटरिंग बाली, बट आई एम नॉट श्योर इफ इट वाज टेकन इनटू कंसिडरेशन और नॉट, बिकॉज अराइवल कार्ड, वीजा ऐसे अलग से चेक नहीं हो रहा था। दे वर प्रोबेबली चेकिंग बाय द पासपोर्ट नंबर, बिकॉज आपका हर डॉक्यूमेंट आपके पासपोर्ट नंबर से लिंक्ड है। दे वर क्विकली चेकिंग कि सारी फीस पेड है या नहीं है। आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर लव बाली वाज इंक्लूडेड इन दैट और नॉट। यू कैन टेक अ चांस एंड स्किप इट। अगर एयरपोर्ट पे आपसे कहा भी जाता है, सो आप क्विकली फिल कर सकते हैं, क्योंकि लव वाली फीस पे ज्यादा कुछ हैसल है नहीं। यू कैन क्विकली गो ऑन देयर वेबसाइट, आई विल आल्सो गिव इट बिलो, एंड यू कैन फिल इट क्विकली एट द एयरपोर्ट आल्सो। आई विल सजेस्ट कि आप स्किप कर दो, क्योंकि काफी टाइम से, काफी मंथ से हम देख रहे हैं कि इट इज नॉट बीइंग चेक। तो नाउ कम्स द करेंसी पार्ट। यहाँ पे काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज कैश और कार्ड, एंड आवर आंसर वुड बी बोथ। आप अपने एक्सपेंसेस को दोनों में डिवाइड कर लीजिए। वी वेंट इन अ 60-40 रेशियो। 60% हमने कैश रखा था, while 40% of the expenses were paid through the card. कार्ड पे हम बाद में आएंगे। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द करेंसी। हाँ, तो करेंसी वहाँ एक्चुअली आईडीआर है। यहाँ से अगर आप INR लेके जाते हैं तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा IDR में कन्वर्ट कराने में। रेट भी कम है उसका INR का। तो डॉलर आप लेके जाइए कन्वर्ट करा के यहाँ से, तो वहाँ आपको अच्छा उसका प्राइस मिलेगा। तो हमने जब यहाँ पे कन्वर्ट कराया था तो आप उस टाइम पे आई थिंक 90 अराउंड चल रहा था। फिर वहाँ जाके हमने IDR का जो हमें रेट था 16,000 IDR पर US डॉलर था, which was a pretty decent rate. Next we come to the card. वहाँ पे आप कोई भी ट्रांजैक्शन अपने नॉर्मल बैंक कार्ड से करेंगे तो आपको 4 to 5% आपको एज फॉरेक्स देना पड़ता है। So we came across this Neo card and it was very helpful. ये बहुत हमें convenient रहा। इसकी वेबसाइट मैं लिंक में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। वी अप्लाइड इट ऑनलाइन एंड आई थिंक 2-3 दिन में आपका एक्टिवेट हो जाता है। सो अ रिप्रेजेंटेटिव केम एंड सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह जो भी उनके फॉर्मेलिटीज से कंप्लीट करके। दिस ऑल्सो कम्स विद एन ऐप। क्या ऐप है? न्यू ऐप है। हाँ, सो नियो ऐप है। दिस इज बेसिकली लाइक अ प्रीपेड कार्ड, दिस इज नॉट अ क्रेडिट कार्ड। सो आपको जो भी स्पेंडिंग इससे करनी है, आपको पहले ऐप में पैसे ऐड कर लेने हैं एंड देन यू कैन स्पेंड विद दिस। दिस वाज वेरी कन्वीनियंट बिकॉज ऑल्दो बाली में मोस्टली जहाँ आप एक्टिविटीज या टूरिस्ट प्लेसेस पे आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ सब जगह आपको कैश की जरूरत पड़ेगी, बट द कार्ड विल कम इन हैंडी फॉर योर होटल चेक इन्स एंड मॉल्स और शॉपिंग प्लेसेस जो आप करते हैं, और स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट के लिए भी आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। नाउ ट्रांसपोर्ट की बात की है, सो लेट्स कम टू द ट्रांसपोर्ट। बाली में बेस्ट है कि ग्रैब या गोजेक एप्स आप पहले से ही डाउनलोड करके चलिए, बिकॉज दे आर वे चीपर दैन द लोकल टैक्सीज। और आप हम तो एयरपोर्ट से ही ऐप बेस्ड टैक्सीज में ट्रैवल करते रहे। इनफैक्ट हमने पूरा ट्रिप ऐप बेस्ड टैक्सीज में यूज किया। ओनली 1 या 2 दिन आई थिंक हमने प्राइवेट ड्राइवर हायर किया था, which were one of the long days. आई थिंक गोजेक थोड़ा सा महंगा पड़ता है। हाँ, हमने 2 या 3 दिन बाद रियलाइज किया कि ग्रैब इज वे चीपर। इट्स अ मिक्स। आप दोनों एप्स में फूड डिलीवरी भी है, तो काफी कन्वीनियंट है कि मतलब आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। यही है कि आप उसमें अपना ये जो है अगेन नियो कार्ड के डिटेल्स ऐड कर लीजिए, द अमाउंट विल बी डिडक्टेड। हाँ, एक चीज हमने जो जैसे हम बुक करते हैं तो अमाउंट पहले डिडक्ट हो जाता है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। तो अगर आप कैंसिल भी कर देते तो वापस आ जाएगा आपका अमाउंट। मेरे हस्बैंड का तो वॉलेट भी छूट गया था कैब में, और 10 या 15 मिनट बाद हमने रियलाइज किया दैट इट वाज लेफ्ट बिहाइंड, एंड आई क्विकली टेक्स्टेड हिम थ्रू द ऐप एंड द ड्राइवर वाज सो वंडरफुल। वो ऑलरेडी किसी दूसरी राइड को लेके जा रहे थे, बट ही स्टिल केम बैक। 10 मिनट में ही वाज बैक एट आवर होटल, रिटर्न द वॉलेट, एंड मतलब हमें इतना अच्छा लगा। तो वहाँ के लोग काफी अच्छे हैं। एनीवे, ये तो सब बात के लिए है बातें। व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? नेक्स्ट इज द सिम। सिम के लिए एक्चुअली 2 चीजें हैं। एक, आप या तो ई सिम पहले ही ऑनलाइन टेलीकॉम सेल की वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपका फोन ई सिम से कंपैटिबल है तो दे हैव वंडरफुल पैकेजेस। नेक्स्ट, अगर आपको जाके फिजिकल सिम लेनी है तो आई विल सजेस्ट कि एयरपोर्ट से मत लीजिए। एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा पैकेज का जो प्राइस है, जो डेटा वो लोग दे रहे हैं, इट इज वेरी कॉस्टली एट द एयरपोर्ट। तो सिम के लिए आप जब ऑफलाइन वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपका खाली पासपोर्ट लेते हैं और विद इन 5 to 10 मिनट्स में आपका सिम जो है आपके फिजिकली आपकी फोन में डाल के उसको एक्टिवेट कर देते हैं। And the connection is nice. So telecom cell is like overall very good. But मैं honestly आपको एक सीक्रेट बताऊँ, हम यहाँ से अपना एयरटेल का इंटरनेशनल पैकेज लेके गए थे and it worked better than the telecom cell. कहीं पे टेलीकॉम सेल का नेट जहाँ नहीं आ रहा था, जैसे नूसा पेनिडा में, मतलब जब हम एक्चुअली ट्रांजिट में थे नूसा पेनिडा के लिए, फेरी में थे, वहाँ समुद्र के बीच में, टेलीकॉम सेल का नेट नहीं आ रहा था, एयरटेल चल रहा था। अगेन एयरटेल थोड़ा कॉस्टली पड़ता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हम टू बी ऑन द सेफर साइड यहाँ से कुछ डेटा का पैक हम लेके गए थे।
कितना 3 GB मिलता है आपको 1000 रुपीज में, ऐसे कुछ उनका पैकेज चलता है, तो ठीक है, बेटर है। नाउ कमिंग टू सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स जो लोग कर देते हैं। नंबर 1 इज अज्यूमिंग कि बाली इज चीप एवरीवेयर। तो ऐसा कुछ नहीं है। वहां की करेंसी देख के इंडियंस थोड़ा उसमें आ जाते हैं कि ओ वी आर प्लेइंग इन लैक्स एंड मिलियंस, हम तो लखपति करोड़पति हो गए। सो इट्स ट्रू कि वहां की करेंसी, बट वहां की परचेजिंग पावर भी उतनी ज्यादा है। हाँ। आपको वहां पे उनके 500 रुपए में वहां आपको कुछ नहीं मिलेगा। वहां का IDR 500 इक्वल्स टू 2.5 रुपीज INR, विच इज नथिंग। ट्रांसपोर्ट हमें थोड़ा महंगा ही लगा था, ऐसा भी नहीं था। ट्रांसपोर्ट 2 किलोमीटर के भी 2 किलोमीटर के तो 100 रुपीज ही लग रहे हैं। And mistake number 2, not checking the weather properly. We went in the month of December, which was the prime monsoon season of Bali. Thankfully हमारा ट्रिप काफी स्मूथ रहा, बिकॉज बाली में बारिश होती है तो 1-2 घंटे की होती है या 10 मिनट की होती है, और फिर सूरज आ जाता है 5 मिनट की होती है। तो जब भी बाहर निकले, वेदर देख के निकले। बाली बहुत ह्यूमिड जगह है, आपको अपने कपड़े भी उस हिसाब से कैरी करने हैं, लाइट वेट, क्विक ड्राई क्लोथ्स कैरी कीजिए। जल्दी सूखते। ऑल्सो प्लानिंग टू मेनी थिंग्स इन वन डे। आपको लगेगा हम ये पॉइंट भी कवर कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, बट एक चीज है कि बाली का ट्रैफिक बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब 5 किलोमीटर जाने में भी हमें 30 to 40 मिनट्स हमें लग रहे थे। और वो कहाँ हम लोग गए थे, इट वॉज मियरली 30 to 40 किलोमीटर अवे। It took us 3 hours to reach because बाली में बहुत narrow lanes हैं। Although the traffic is very well managed, फिर भी इतनी गाड़ियां हैं। मोस्टली सब बाइक से होते हैं। हाँ, वहाँ जो टूरिस्ट हैं वो मोस्टली बाइक हायर कर लेते हैं। हमने नहीं की, बिकॉज एक तो हमारे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट नहीं था, और हम वो रिस्क लेना भी नहीं चाहते थे कि हम बिना IDP के ट्रैवल करेंगे। और अगर आपको IDP मिल जाता है तो आप IDP यहाँ से इशू कीजिए इंडिया से, एंड देन यू गो एंड हायर अ स्कूटी। ये तो वो तो बहुत ज्यादा आपको इकोनॉमिकल पड़ेगी, कैब से भी ज्यादा। हमारे पास थोड़ा गियर था, हमारा कैमरा, ट्राइपॉड एंड ऑल, सो वी वर प्रेफरिंग टू गो बाय कैब। वन थिंग मोर, जो करेंसी एक्सचेंज है, प्लीज डोंट गेट इट डन एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट बहुत कम रेट्स देते हैं, एयरपोर्ट के आसपास मत करना। आप किसी ऑथराइज करेंसी एक्सचेंजर से ही अपनी करेंसी एक्सचेंज करवाइए। बी वेयर ऑफ द स्कैमर्स। एक बार वो आपको पैसे दे दें तो दोबारा उन्हें टच करने मत दीजिएगा, बिकॉज कभी कभी वो 1 या 2 नोट्स स्लिप इन कर लेते हैं। एंड मेक श्योर जिस भी आप करेंसी एक्सचेंज पे जाए वहां पे एक तो मनी काउंटिंग मशीन हो, दूसरा LED बोर्ड डिस्प्ले हो, क्योंकि जो थोड़े स्कैमर टाइप के होते हैं, MIC मैनुअली हाथ से लिखा होता है, या फिर किसी शॉप के अंदर कोई मनी एक्सचेंज है तो वो भी मत कीजिए। प्रॉपर ऑथराइज्ड मनी, और ऑथराइज्ड हर कोई लिखता है, मेक श्योर उनके नाम के आगे PT लिखा हो, है ना, PT लिखा हो, या वहां का जो बैंक है BMS उसका लोगो हो, या एक ब्लू कलर का भी कोई लोगो होता है वो हो, कुछ ना कुछ हो। और जब आपको वो करेंसी एक्सचेंज करके देंगे, सो दे विल प्लेस द नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू ऑफ द टेबल सो दैट यू कैन काउंट इजीली। एंड अपने हाथ में लेके 2-3 बार रिकाउंट कीजिए, एंड स्ट्रेट अवे कीप इन टू योर बैग। कभी वो दोबारा आप मांगते भी हैं कि लाओ हम एनवेलप में दे दें या उस तरह से, सो रिफ्यूज कर दीजिए। वो आपको बिल वगैरह सब बना के देते हैं साथ में, ऐसा नहीं है कि बिल नहीं देंगे आपको। हाँ, वन मोर थिंग कि आप अगर सैटरडे संडे अगर पहुंच रहे हैं बाली, तो उस टाइम पे आपको जो भी मनी रेट चल रहा होगा वो कम चल रहा होगा इन कंपैरिजन टू अदर डेज। तो आप कोशिश करिए कि उस टाइम पे कम एक्सचेंज कराइए, नेक्स्ट डे आपको रेट भी अच्छा मिलेगा, और आप सारी करेंसी एक साथ मतलब एक्सचेंज कराइए, जितना नीड है आपको उतना करा के रखिए बस। So this was our honest Bali preparation guide from an Indian traveler's perspective. अगर आप बाली विजिट करने का प्लान कर रहे हैं और आपको इस तरह का ऑनेस्ट कंटेंट समझ आता है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। Also, our Bali vlogs are coming next, so stay tuned. Thank you. Bye bye.